Today we are going to discuss applications of hyperconjugation. In the previous video we discussed about hyperconjugation. इस वीडियो में हम उसके applications पढ़ेंगे. So first application is stability of alkenes. Now just remember this simple formula. Stability of alkenes is directly proportional to the number of alpha hydrogen. जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन. और this is directly proportional to number of resonating structures. More is the resonating structures or more is the number of resonating structure, more will be the stability. See this example, CH3 CH double bond CH2. So in this ये है doubly bonded carbon. This one is alpha carbon because it directly attached है, it has 3 alpha hydrogen. Second example CH3 CH2 CH double bond CH2. This is again doubly bonded carbon. इससे जुड़ा हुआ carbon is this one, second carbon, which is alpha. Again it has 2 alpha hydrogen atoms. See the third example CH3 CH CH3 CH double bond CH2. This is again doubly bonded carbon and the carbon directly attached. This one is alpha. It has only 1 alpha hydrogen. So number is 3 is greater than 2 is greater than 1. So that means ये सबसे ज़्यादा stable होगा, ये सबसे कम stable होगा, and this will be intermediate between these two. Now let's see another example. Suppose ऐसा example आपको दिया CH3 C CH3 अगेन डबल बॉन्ड C CH3 CH3 मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन के चारों तरफ CH3 है. देन यू कैन सी 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर देयर. सो कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 4 3 12. नाउ सी द अनदर, सी द नेक्स्ट एग्जांपल. अगेन डबली बॉन्डेड कार्बन, 2 alpha hydrogen atoms here and 1 alpha hydrogen atoms on right hand side. Okay, total number of alpha hydrogen 1 2 3 3 3 are 9 hydrogen atoms. In this way you have to count. Now see this example, C double bond C है, CH2 this side, और इस तरफ ये डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड 2 CH3 हैं, that means 2 alpha hydrogen atoms and it has 3 plus 3 6 alpha hydrogen atoms. ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, और ये दो हाइड्रोजन. दिस वन इज नॉट अल्फा. तो अब ऑर्डर क्या आएगा? 12 इज ग्रेटर देन 9, 9 इज ग्रेटर देन 6. सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? फर्स्ट वन. सबसे लीस्ट ये, इन दोनों के बीच होगा दिस वन. क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकेंड टाइप, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज हम बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं. कैसे? C double bond C bond length is directly proportional to the number of resonating structures, which in turn will be directly proportional to number of alpha hydrogens. So पहले हम देखते हैं कुछ examples कि किस तरह से हम bond length decide कर सकते हैं. Okay, so first one is CH2 double bond CH2. This is ethene. ये doubly bonded carbon है, इससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा कार्बन नहीं है, no alpha, so that means 0 अल्फा. सो अगर अल्फा ही नहीं है देन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल आल्सो बी 0. सो जब 0 आएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 0 है, देन C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ विल बी 1.34 एंगस्ट्रॉम. कितना होगा? 1.34 एंगस्ट्रॉम. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन, इससे जुड़ा हुआ CH3 इज अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है. हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3. तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 3 plus 1. 3 plus 1 कितना होगा? 4. अगर 4 आया देन द बॉन्ड लेंथ विल बी 1.39 एंगस्ट्रॉम. कितना होगा? 1.39. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, CH3, ये मिथाइल है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. आपको क्या करना है? डबली बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ कार्बन देखिए, दिस इज अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर. कितने हुए? अल्फा हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं. नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 2 plus 1 3. सो जब 3 आएगा आंसर, देन द बॉन्ड लेंथ विल बी 1.37 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? देखते जाइए, जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम हो रहे हैं हमारा बॉन्ड लेंथ भी कम होते जा रहा है. क्लियर?
Now another example is CH3. ये भी मिथाइल ग्रुप है. Okay, I told you earlier also. CH3, CH, CH3, double bond CH2. Check the valency of this carbon. ये doubly bonded carbon है. इससे attached. This one is also alpha. Sorry, this one is alpha. This one is also alpha. तो कितने अल्फा हुए? 2 अल्फा कार्बन. हाइड्रोजन कितना हुआ? 3 + 3 6. कितना हुआ? 6. बट कुछ ज्यादा ही आ रहा है ये 3 + 3. एक्सक्यूज मी, तो पॉज करिए तो थोड़ा. CH3, CH, again CH3, CH double bond CH2. This is doubly bonded carbon. Again this carbon is alpha carbon. It has only one alpha hydrogen. So alpha hydrogen atom कितना हुआ? 1. Number of resonating structures कितने होंगे? 1 + 1 2. Okay, when number of resonating structure comes out to be 2, it will be CC double bond length will be 1.35 angstrom. Clear? Now let's see this example. यहाँ देखिए ये 3 डिग्री दिख रहा है कार्बन. This is doubly bonded carbon. अल्फा कार्बन ये वाला है, दिस वन, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन, है ना. तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 0. नो हाइड्रोजन एटम 0 है. ओके, सो 0 हाइड्रोजन एटम्स आर 0. तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या होगा? 0. सो वी डिस्कस्ड अर्लियर, इफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 0 है या अल्फा हाइड्रोजन 0 है, देन व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ? 1.34 एंगस्ट्रॉम. कितना होगा? 1.34 angstrom. So we'll see other applications also. Third application is stability of R plus, that is alkyl carbocation, which is directly proportional to the number of resonating structures, which in turn is directly proportional to number of alpha hydrogen atom. रूल बिल्कुल सिंपल है. अगर स्टेबिलिटी पता करना है R प्लस का, तो क्या देखना है आपको? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है. सेम रूल अप्लाई होगा. सो आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. CH3 प्लस, इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि 1 कार्बन है. दिस वन इज इथाइल कार्बोकेटायन, क्यों? 2 कार्बन एटम्स है. नेक्स्ट इज CH3CH, CH3 प्लस. This is 2 degree carbocation. You can see 2 alkyl group और CH plus है, 2 degree carbocation. अब इसमें देखिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है. इसमें कुछ नहीं है. ओके, 0, क्योंकि ये अल्फा नहीं है. 0. Here this one is alpha. Alpha hydrogens 3. This one is alpha and this one is also alpha, because both the carbon atoms are directly attached to C plus. So how many hydrogen? 3 + 3 6. तो आप ऑर्डर देख सकते हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी 6 विल बी ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 0. क्लियर? पक्का? ओके. नेक्स्ट आप देखना है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. क्या देखना है आपको? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, सेम रूल. स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, which in turn is directly which is equal to, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो जो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा. क्लियर? सो फिर से हम देख लेते हैं फ्री रेडिकल. CH3 फ्री रेडिकल, इट इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल. CH3 CH2 डॉट इज इथाइल फ्री रेडिकल. देन कम CH3 CH CH3 2 डिग्री फ्री रेडिकल. ठीक है, प्रोपाइल है. अगर ऐसे देखेंगे 3 कार्बन एटम्स, प्रोपाइल फ्री रेडिकल 2 डिग्री है. राइट? नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. 3 डिग्री फ्री रेडिकल. अगेन अल्फा, सी द नंबर ऑफ अल्फा. अल्फा कितना है इसमें? कुछ नहीं है. दिस विल बी 0. राइट? हियर इट इज 3 because this is alpha 3. Here it is 3 + 3 6. Here 3 3s are 9. Stability order will be 9 is greater than 6, 6 is greater than 3, 3 is greater than 0. Okay, so here जैसे जैसे resonating structures increase होगा, RS ज्यादा होगा, stability will also be more. Okay, stability भी ज्यादा होगी. Right? So hyperconjugation ज्यादा, stability ज्यादा. Resonating structure ज्यादा, stability ज्यादा. Alpha hydrogen ज्यादा, stability ज्यादा. Okay. Now let's see the fifth and last point, electron releasing power of R in alkyl benzene.
So here this is alkyl benzene. Let's take one example, CH3. ग्राफिक फार्मूला जब आप लिखेंगे आप इस तरह से लिख सकते हैं H H H. Okay, now here you see ये जो बॉन्डेड पेयर है इधर आएगा बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दिस वन इज sp3. इमीडिएटली रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे. सो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट विल बी दिस टाइप double bond CH and you can see here no bond resonance. ये H प्रोटॉन बनेगा एंड यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, no bond resonance. Okay, so this group CH3 is ortho para directing. Next जो स्ट्रक्चर बनेगा again you can see electron pair will be here. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला अंदर आएगा, अंदर वाला बाहर जाएगा, नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड CH अगेन H प्लस. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर जब एक बॉन्ड यहाँ का BP इधर आया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, सो वी आर गेटिंग नो बॉन्ड रेजोनेंस हियर. सो 3 हाइड्रोजन है तो 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. ओके, सो इन दिस वे ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स greater will be the stability of alkyl benzene. So in the next video we'll discuss in the next video we'll discuss reverse hyperconjugations. Okay, till then keep learning and thank you all for your valuable time. Tata.